traditional shawl, which goes a long way towards representing the feature. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಈ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾರದ ಅರ್ಪಣೆ. ಈ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾರ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. The traditional cardamom garland prepared at Haveri by the Honorable Chief Minister, presenting cardamom peta by Shri Anurag Singh Thakur, Honorable Union Minister for Youth Affairs and Sports. Presenting memento of Bidri art statue with silver inlay of Swami Vivekananda by Honorable Minister Shri K.C. Narayana Gowda. Presenting photo frame of national flag woven in Dharwad by Shri Prahlad Joshi and all the dignitaries. ಬಂಧುಗಳೇ ಗಮನಿಸಿ, every Indian national flag fluttering high in the sky comes from Dharwad. Inauguration. The traditional folk arts of Karnataka, Dollu, Maddale, ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. After Andhra Pradesh, ladies and gentlemen, we are having the team from Siddharutha Matha Pradesh with the dance form of Nishi Arunachal folk dance. अनेक मठाकला क्षेत्र के ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಾಡು, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಬಿಡು, ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause for कर्नाटक का ये क्षेत्र marching in front of the dignitaries अपनी परंपरा, cultural heritage of the state. संस्कृति Gujarat, और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है. the team, the youth, यहाँ की अनेक विभूतियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस क्षेत्र ने देश को एक से बढ़कर एक महान संगीतकार दिए. पंडित कुमार गंधर्व, पंडित बसवराज राजगुरु, पंडित मल्लिकार्जुन मानसोर, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी और पंडिता गंगूबाई हंगल जी को मैं आज
हुबली की धरती पर आकर Ladies and gentlemen, Deviya Sajjana नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। Team Maharashtra. साथियों, Maharashtra, the Dindi साल 2023 में Mridangam. राष्ट्रीय युवा दिवस का ये दिन followed by Manipur, बहुत विशेष है। Naugal Jogai with Langdale, एक और flute. ये ऊर्जा महोत्सव After contributing immensely to the unity and diversity, we और also दूसरी ओर have Meghalaya. आजादी का अमृत महोत्सव। Please watch the long drums and horns. उठो, जागो Meghalaya, और लक्ष्य से पहले मत रुको। presenting एली एद्ददेली Dol Tumbi गुरु मटवा तनका निल्लदी। Bhangra dance and guitar, dole, tumbi. विवेकानंद जी का ये उद्घोष We have team Rajasthan भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है। representing the true folk आज heritage of Rajasthan. अमृत We have काल में हमें Sikkim presenting अपने कर्तव्यों पर जोर देते हुए Danyan, Luma and Jamta are presented. अपने कर्तव्यों को समझते हुए from south we have Tamil Nadu. Display देश को आगे बढ़ाना है with the drums. और इसमें भारत के युवाओं के सामने By Tamil Nadu, स्वामी विवेकानंद जी की बड़ी प्रेरणा है। dance with Dol and Nagada. मैं इस अवसर पर Uttar Pradesh also have congregated to Hubballi. स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करता हूं। Few days after Uttar Pradesh, Deviya Sajjana अभी कुछ दिन ही पहले Uttarakhand, Cholia, कर्नाटका की धरती के using the instruments of एक और महान संत Basuri and Hudki. श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी का देहावसान हुआ है। After Uttarakhand, मैं सिद्धेश्वर स्वामी जी को भी Chandigarh आदर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। and Tumba. साथियों, Chandigarh, स्वामी विवेकानंद जी का the Union Territory, we have कर्नाटका से अद्भुत रिश्ता था। and Daman and Diu, Garba, उन्होंने Kawa and Tarpa, अपने जीवन काल में Dole and Nagada. कर्नाटका और इस क्षेत्र की कई यात्राएं की थी। बंगलुरु जाते समय वो हुबली धारवाड़ भी आए थे। इन यात्राओं ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी। मैसूरू के महाराजा भी उन लोगों में से एक थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो यात्रा में उनकी मदद की थी। स्वामी जी का भारत भ्रमण इस बात का भी प्रमाण है कि कितनी ही सदियों से हमारी चेतना एक थी, एक राष्ट्र के रूप में हमारी आत्मा एक थी। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का अमर उदाहरण है। इसी भावना को अमृत काल में देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ा रहा है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब युवा ऊर्जा हो, जब युवा शक्ति हो, तो भविष्य का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना उतना ही आसान होता है। कर्नाटका की इस धरती ने खुद ऐसी कितनी ही महान विभूतियां दी है जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा। बेहद कम उम्र में असाधारण काम किए।
कित्तूर की रानी चेन्नम्मा देश की अग्रणी महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। उन्होंने सबसे मुश्किल समय में भी आजादी की लड़ाई को नेतृत्व दिया। रानी चेन्नम्मा की ही सेना में उनकी साथी संगोली रायण्णा, ऐसे वीर योद्धा भी जिनके शौर्य ने ब्रिटिश सेना का हौसला तोड़ दिया था। इसी धरती के नारायण महादेव धोनी मात्र 14 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद बने थे। युवा की जीवटता क्या होती है, उसके हौसले कैसे मौत को भी मात दे सकते हैं, ये कर्नाटका के सपूत लांस नायक हनुमंथप्पा खोपड़ ने सियाचिन के पहाड़ों में दिखा दिया था। -55 डिग्री तापमान में भी वो 6 दिन तक मौत से मुकाबला करते रहे थे और वहां से जिंदा निकल करके आए थे। ये सामर्थ्य केवल शौर्य तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, श्री विश्वेश्वरैया जी ने इंजीनियरिंग में अपना लोहा मनवाकर ये साबित किया कि युवा प्रतिभा किसी एक दायरे में बंधी नहीं होती है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे युवाओं की प्रतिभा और क्षमता एक से एक कल्पनातीत अविश्वसनीय उदाहरणों का अंबार लगा हुआ है। आज भी मैथ से लेकर के साइंस तक जब दुनिया के मंचों पर प्रतियोगिताएं होती हैं तो भारतीय युवाओं की काबिलियत विश्व को विस्मित कर देती है। साथियों, अलग अलग कालखंड में किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकताएं बदलती है, उसके लक्ष्य बदलते हैं। आज 21वीं सदी के जिस पड़ाव पर हम भारतीय पहुंचे हैं, हमारा भारत पहुंचा है, वो उपयुक्त समय सदियों के बाद आया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का ये युवा सामर्थ्य, ये युवा शक्ति। आज भारत एक युवा देश है। दुनिया की बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है, हिंदुस्तान में है। युवा शक्ति इज द ड्राइविंग फोर्स of India's journey. The next 25 years चॉइस के हिसाब से आगे बढ़ने की आजादी है। ये बुनियाद भविष्य के भारत का निर्माण करने वाले फ्यूचर रेडी युवाओं को तैयार करेगी। साथियों, आज इस तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकानंद जी 2 संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए। ये 2 संदेश हैं इंस्टीट्यूशंस और
इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजुअल सक्सेस को टीम सक्सेस के रूप में विस्तार दे। यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा। मेरे युवा साथियों, आपको स्वामी विवेकानंद की एक और बात याद रखनी है। इनोवेशन के लिए भी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिभाषित करना है तो वो यही है। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले देश में डिजिटल पेमेंट्स की शुरुआत हुई थी, तो कुछ लोगों ने इसका खूब मजाक उड़ाया था। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो भी इन लोगों ने कहा कि ये सब भारत में चलने वाला नहीं है। देश गरीबों के लिए बैंकों में जनधन खाते खुलवा रहा था, योजना लेकर आया, उसका भी मजाक उड़ाया। कोविड के समय हमारे वैज्ञानिक स्वदेशी वैक्सीन लेकर आए तो उसका भी उपहास किया गया कि ये काम भी करेगा या नहीं। लेकिन अब देखिए, आज भारत डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड लीडर है। आज जनधन खाते हमारी इकोनॉमी की एक बड़ी ताकत है। वैक्सीन के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि की दुनिया में चर्चा हो रही है। इसलिए आप युवाओं के पास अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर टिके रहिए। कुछ न कुछ नए प्रयास और नए प्रयोग हो रहे हैं। इसी कड़ी में नेशनल यूथ फेस्टिवल में भी देश के अलग अलग राज्यों के युवा विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए जुटे हैं। ये कुछ कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह है। क्या अलग अलग राज्यों के युवा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना लेकर अपने कौशल का प्रदर्शन करने आए हैं। यहां ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन जीता, क्योंकि हर स्थिति में जीत भारत की होगी। क्योंकि यूथ फेस्टिवल में हमारे युवाओं का टैलेंट निखर कर सामने आएगा। आप यहां एक दूसरे से कंपटीशन करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करेंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि कंपटीशन तभी हो सकता है जब उसमें भाग लेने वाले एक नियम को पालन करवाने में एक दूसरे का सहयोग करें। हमें कंपटीशन और कोऑपरेशन की स्पिरिट को लगातार आगे बढ़ाना है। हमें हमारे हर लक्ष्य में ये सोचना है कि हमारी इस सफलता से देश कहां पहुंचेगा। आज देश का लक्ष्य है विकसित भारत, सशक्त भारत। हमें विकसित भारत के सपने को पूरा किए बिना न रुकना है, न विराम करना है। मुझे विश्वास है हर युवा इस सपने को अपना सपना बनाएगा। अपने कंधों पर देश की ये जिम्मेदारी लेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ.